6b. First sum. The sides of right triangle containing the right angle are 4x and 2x minus 1. First of all, right angle triangle बोला है तो right angle triangle draw कर लो free hand से. Sides of right triangle containing right angle, which two sides contain the right angle AB and BC here in this figure, according to this figure, are 4x and 2x minus 1. Area of triangle is given 30. यहाँ पे बच्चे proper let AB is equal to 4x centimeter is must, नहीं तो half या 1 mark कट जाएगा. BC 2x minus 1 ब्रैकेट में डाल के करना है बच्चे सेंटीमीटर. And the area is given according to question. Area is 30 centimeter square. Yes, Khushi. Area of triangle. Yes, sir. Sir, half into triangle. height. Half into base into height. I think all of you know very well. Yes, 30. sir. Half base बच्चे 2x minus 1 into height is 4x. This is base. चाहे इसको बेस ले लो तो ये height, ये बेस है तो ये height is 30. 4 से बच्चे 2 is ये क्या कट हो गया. 2 था यहाँ पे 4x था ना, मल्टीप्लाई में है तो 4 से 2 कट हो गया, 2 रह गया. 2x को दोनों से, या एक काम और कर सकते हैं, x को दोनों से कर लो, 2 साइड जाके अपॉन में हो जाएगा. 2x minus 1 into x रख लो, जो ये 2 बचा था वो नीचे ले जाओ तो स्मॉलर हो जाएगा. बाद में भी कॉमन लेके कट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. यस गरिमा, क्या आएगा? सर मल्टीप्लाई 2x square minus 6 minus 15. 15 इस साइड आके 15 टू द 30. 30 के फैक्टर गरिमा, जिनको माइनस करें सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए. सर -6 plus 5x minus 6x plus 5. रात को ना सो जाया कर, सारी रात जागती रहती है. कितने बजे सोई थी रात? कि सुबह सोई है गरिमा? सर मॉर्निंग 3 4 है ना? बजे. 3 बजे. दिन में सोती है कि दिन में भी नहीं सोती? सर सुबह बोलो. सोती है. सर सुबह सोती हूँ. चलो, मैंने सोचा शायद मेरी तरह नींद कम आती हो. 2x is equal to -5 and x is -5/2. अब साइड जो है, लेंथ जो है वो नेगेटिव हो सकती है बेटा? नहीं हो सकती ना, तो दिस इज टू बी रिजेक्टेड. तो देयर हमने फाइंड क्या करना था? लेंथ ऑफ साइड्स. बेस आ जाएगा x की वैल्यू फिल करके 3 आई है. AB 4x है, देयरफॉर AB is equal to 4x is equal to 4 into 3, that is 12 centimeter. BC is equal to 2x minus 1, 2 into 3 minus 1, 6 minus 1, that is 5. But now we have to find the third side also. उन्होंने 2 sides नहीं बोली. Calculate the length of its sides. Its sides मतलब triangle की sides. The third side is also left. That is AC. AC अर्शिया कैसे फाइंड करेंगे? अर्शिया. Yes, sir. How we can find AC? Sir, by putting Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem. Now, by using Pythagoras theorem. कई बच्चे ना यहीं पे निकाल के छोड़ देते हैं कि 2 साइड आ गई बस ठीक है. नहीं, all the 3 sides उन्होंने बोला है. Pythagoras theorem. Hypotenuse AC square is AB square plus BC square. AC as like AB is हमने फाइंड किया था बच्चे, ये रहा 12 square. BC फाइंड किया था, that is 5 square. AC square 144 plus 25. AC
Square root of 169, that we get 13. 13. एक मिनट, खुशी, is it correct or wrong? सर प्लस माइनस. Yes, प्लस माइनस बच्चे नहीं भूलना. एक AC की वैल्यू -13, length can't be negative, this is to be rejected, therefore AC is 13 centimeter. तीनों साइड्स आ गई, 12, 5 and 13. Good evening, Okay? sir. Good evening बच्चे. यश, तुम्हारे 7 o'clock अभी हुए हैं? सर एक्चुअली सर मेरा दूसरा ट्यूशन था तो अभी जैसे खत्म हुआ मैं इधर आया. The sides of right triangle, sorry, second sum, not third, second sum. The hypotenuse of a right triangle is 26 centimeter. Again, right angle triangle, draw a right triangle. बच्चे ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करते, बट ड्रॉ करो बेटा, आधा सम फिगर में ही सॉल्व हो जाता है. Hypotenuse of right triangle is 26. Sum of other two sides is 34. Means AB plus BC is given 34. Find the length of its side. Let AB is equal to x centimeter. Then Bhavna, what is BC? No? X plus 1. बच्चे यहाँ कंजेक्टिव थोड़ा है. Can I tell? Yes. 34 minus x square. 34 minus x. 34 minus x. दोनों का सम बच्चे 34 है. AB x, x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो BC की वैल्यू x की फॉर्म में आ जाएगी. AB is x, this is 34 minus x. Now, Khushbu, what we can do? Sir, we can apply Pythagoras theorem. Sir, By 26 using? square. मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो या चाहे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख दो. AB स्क्वायर Sir, प्लस BC स्क्वायर. हाँ जी बेटा sir बोलो. 80 ये जो 80 का बोर्ड्स में लिख सकता है. बच्चे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो, आवाज कट रही है. सर अब आ रहा. हाँ जी बोलो. सर जो 80Q है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर हम लोग बोर्ड में से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. हाँ जी बच्चे लिख सकते हैं. ओके सर. AB x square, BC 34 minus x, AC 26 square. Now you can solve it yourself. अपने आप ट्राई करो. ओके यस सर. Okay, हो जाएगा. गरिमा, खुशबू, जैस्मीन, Yes, sir. खुशी, रूही, यस सर. शौर्या, स्नेहल, Yes. यश. Okay. Now third sum. The sides of right triangle again are draw a right angle triangle. बच्चे ड्रॉ करना है, ये मत सोचना कि सर ने कर दिया हम नहीं करेंगे. ड्रॉ करो, कभी मिस्टेक नहीं होती. The sides of right triangle are x minus 1, 3x and 3x plus 1. अब कौन सी साइड को x minus 1 लूं, कौन सी साइड को 3x लूं और कौन सी साइड को 3x plus 1 लूं? Yes, अंजलि. अंजलि, are you listening? बच्चे रिस्पॉन्ड बोलो, चुप रहने से कुछ नहीं आएगा. 3x plus 1 hypotenuse. अर्शिया. Yes, sir. यस बच्चे बोलो, कौन सी साइड को कौन सी साइड लूं मैं? x minus 1 को Sir, 3x x को. minus 1 को AB x minus यस and BC is 3x. एंड 3x plus 1. why? क्यों हंसिका? why बच्चे? Sir, because it's a right angle triangle and we will take x minus 1 always from right angle side. नो बच्चे, नो. Sir, because 3x plus 1 is the longer side, so it will be the Yes. height. This Yes, is the yes, largest yes. side. लार्जेस्ट साइड बच्चे 3x plus 1. 3x स्मॉलर है ना 3x plus 1 से, उसमें 1 ऐड हो रहा है.
x माइनस 1 तो और भी स्मॉलर है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अर्शिया ध्यान से सुनो बेटा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये दिमाग में बिठा लो कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब तीनों में से लॉन्गेस्ट क्या थी? 3x + 1। ये इंटरचेंज कर सकते हैं, AB को 3x और BC को x - 1 ले सकते हैं। लेट AB BC CA सेम टू सेम मेथड से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ADQ पाइथागोरस थ्योरम AB² + BC² x - 1² + 3x² is equal to 3x + 1 का होल स्क्वायर। You can solve now. Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. Now the fourth sum. The hypotenuse of a right triangle. Again, you have to draw a right angle triangle. The hypotenuse of a right triangle exceeds मतलब ज्यादा, more, one side by 1 centimeter and the other side by 18 centimeter. Find the length of the sides of the triangle. Sir, Yes, Khushbu. Yes, sir. Sir, we will take Hypotenuse of hypotenuse. Sir, we will take hypotenuse Let- as x. Let AC is equal to x. ठीक है? ये Yes, sir. सेंटीमीटर साथ में आएगा? Sir, आएगा sir, आएगा. आएगा। Then BC Sir, x + 18 centimeter. Sir, because चलो। exceed लिखा है. एक सेकंड चलो, जस्ट वेट। बच्चे मैंने क्या बोला है प्लीज? खुशबू, Yes, x sir. is greater or x + 18 is greater? Sir, x is greater. Okay, X plus sir. 18 Sir, smaller x है? minus 18. No, sir. Sir, गलत है वो. Sir, x minus 18 centimeter. हाइपोटेन्यूज लॉन्गर था बेटा, एक्सीड था, तो Yes, sir. दूसरी साइड क्या होगी? स्मॉलर। ठीक है, सर उतनी एक स्मॉलर बात हो जाएगी। पूछनी है सर, हाँ जी इसमें बेटा। जो पहली वाली एक्सरसाइज थी सर, उसमें जब एक्सीड के क्वेश्चंस थे तो हम सर ऐड करते थे नेक्स्ट साइड पर, तो हमने इसमें क्यों नहीं करा हाँ, फिर फिर? इन्होंने बोला क्या है, कौन सी साइड ग्रेटर है? लो रफ वर्क, AC हाइपोटेन्यूज है, Yes, AB sir. से 1 ग्रेटर है, AB + 1। हाइपोटेन्यूज BC से कितना ग्रेटर है? 18, BC + 18। अब मैंने AC को, तुमने बच्चे AC को x ले लिया, AC के प्लेस पे x, AB की वैल्यू कितनी आएगी? 1 इस साइड आके माइनस होगा ना। यस सर। AC को x लिया है, 18 इस साइड आके माइनस होगा, तभी BC की वैल्यू आएगी। सर मुझे समझ नहीं अंडरस्टूड और आया। नॉट? नो सर। सर मेरे तूने को बच्चे प्रॉब्लम हो रहा है। जस्ट वेट बच्चे, प्लीज बीच में मत बोलो। खुशबू, यस उन्होंने सर। बोला बच्चे हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन द AB। मान लो AB से ग्रेटर है 1, या तो तुम AB को लेट करती, चलो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट AB इज x सेंटीमीटर, हाँ। देन AC, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी? x + 1 सेंटीमीटर। अब प्लस हो गया ना, हाँ सर। एक्सीड। देन BC कितना आएगा? सर x + 1 + 18। नहीं बच्चे, फिर वही चीज गलत कर रही है। उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुन, हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन BC बाय विच नंबर? 18। इसमें 18 ऐड करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टूड? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? AC की वैल्यू कितनी आई है? x + 1। BC एज लाइक प्लस 18 एज लाइक। 18 इस साइड आके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। ये चीज सोचना बच्चे, तू ये मत सोच एक्सीड लिखा है तो प्लस होगा, प्लस ही हो रहा है, बट इस साइड आएगा तो माइनस होगा ना। ओके सर। नहीं समझ आया अभी? तो दोनों कंडीशंस को AC, AB और BC की फॉर्म में लिख। AC किसके इक्वल? AB + 1, यस सर। यही बुक में लिखा है एक्सीड। यस सर। और हाइपोटेन्यूज BC से कितना ग्रेटर है? 18। 18। BC + 18 लिखेंगे। यस सर। ये दोनों समझ आ गई? हाँ ये सर। चीज उन्होंने दी हुई है। तूने क्या लेट किया था? लेट AC इज x। यस तो सर। AB को बच्चे x की फॉर्म में फाइंड करो। AB को x की फॉर्म में फाइंड करके आएगा
सर 1 x उस साइड जाके प्लस होगा कि माइनस? सर x ए बी minus बच्चे 1 x minus 1 एंड BC x minus 18। अब समझ आ गया? हाँ सर आ गया। यस सर। तो सिर्फ एक्सीड वर्ड को देख रही है कि एक्सीड का मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा ही है, बट उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस होगा ही होगा ना। यस सर हाँ मेरे ठीक है। मेरे पास 50 रुपीज है, तेरे पास 40 रुपीज है, मेरे पास कितने ज्यादा है? सर 10 रुपीज ज्यादा। 10 रुपीज मोर है, एक्सीड है ना। अब मैं इन दोनों चीजों को छोड़ देता हूं। मेरे पास 70 है, मेरे पास तेरे से 10 रुपीज ज्यादा है, तो तेरे पास कितने होंगे? सर 60। फिर अब माइनस क्यों कर रही है? माइनस क्यों किया है? सर क्योंकि समझ आ सर गई? यस सर क्योंकि मेरे पास 10 हाँ, ज्यादा, आप वही मेरे चीज पास यहाँ 10 पे कम बोली है थे। बच्चे। हाँ, ज्यादा एक्सीड बोला, एक्सीड है, बट तेरे पास तो लेस ही होगी ना। उसी टाइप से हाँ सर। हाइपोटेन्यूज एक्सीड था, तो बेस एंड परपेंडिकुलर तो स्मॉलर ही होंगे ना उतने। यस सर। हाँ अंडरस्टूड? सर। यस सर। समझ आ गया बच्चे? यस सर। अब इसके बाद बच्चे तुम सब अपने एक्सक्यूज आप कर मी सकते सर। हो। हाँ जी बेटा। सर आपने हम BC को भी x-1 ले सकते हैं और AB को x-18। नहीं बच्चे, एक्स लेट करो, x-1 मत लेट करो, नहीं, एक्स लेट करो, किसी भी साइड को एक्स लेट करो। जैसे हमने AC को तो x ले लिया, पर हम AB को x-18 और BC को x-1 ले हाँ, सकते वो हैं। ये दोनों साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, ये कहीं पे भी ले लो, चाहे इसको x-18 ले लो, इसको x-1 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। ओके आई सर। समझ? वो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी उनकी। अभी भी किसी को डाउट हो इस सम में? नो वन? No, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 5। खुशबू तुम सबका फायदा कर रही है, सर बेनिफिट मिल रहा है सबको खुशबू के कारण, क्योंकि पूरी डिटेल में समझ आ जाता है कुछ। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, बस बस कोई बात नहीं, तेरी प्रेज ही की है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। रेक्टेंगल, तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द डायगोनल, चाहे बीडी को ज्वाइन कर लो चाहे एसी को, मैंने एसी को ज्वाइन कर लिया। Diagonal of rectangle is 60 meter more than shorter side and the larger side is 30 meter more than shorter side. Find the sides of rectangle. Let BC be the shorter side. X meter. Jasmine. Yes. Is it clear now? नीचे कॉल आ गई थी किसी की। यस सर। यस सर। Yes, sir. Diagonal of rectangle is 60 meter more than shorter side. X plus 60. And the larger side is 30 meter more than shorter side. X plus 30. How? Now you can solve it. यस कर सर। लोगे बच्चे सॉल्व? Yes, Yes, sir. sir. By using Python. Next is question number 6. Perimeter of rectangle is 104 meter. And its area is given 640 meter square. Find the length and breadth. कौन बताएगा मुझे? हंसिका सर बताओ मैं बेटा ट्राई कैसे करूं? करें? एक सेकंड,
हंसिका Yes, sir. कैसे सॉल्व करें बच्चे इसको? Sir, I हमें don't know. पैरीमीटर डोंट नो। यस, और कौन बोल रहा था? सर मैं यश, हाँ बोलो बच्चे। सर इसमें हम लोग को साइड फाइंड करना है ना? हाँ जी, सर हम लोग जैसे एरिया वरना पेरीमीटर किसी का भी एक का फॉर्मूला पुट करके हम लोग कर सकते हैं रफ जैसे वर्क में बच्चे पैरीमीटर 104 मीटर। सर पहले Peri- पेरीमीटर 2x plus y equals to 104 कर देंगे, फिर सर x XY plus y नहीं की वैल्यू बचेगा। 52 हो जाएगी, गरिमा सर गरिमा फिर गरिमा y की स्टॉप वैल्यू स्टॉप स्टॉप, बस कर बस कर। पैरीमीटर इज 104। पैरीमीटर के प्लेस पे पैरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b 104। 2 बच्चे नीचे चला गया, कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। दोनों का सम 52 है। 52 नाउ हंसिका, लेंथ को बच्चे मैंने x ले लिया, Yes, sir. तो ब्रेड कितनी होगी? Sir, 52 minus x. Means समझ length. आ गई? ब्रेड बेटा, Yes, sir. लेंथ को मैंने x लेट किया। अंडरस्टूड? मतलब दोनों में से एक फॉर्मूला ले लिया, मैंने पैरीमीटर का फॉर्मूला ले लिया रफ वर्क में। पैरीमीटर का फॉर्मूला फिल किया, l + b आ गया, दोनों का सम आ गया, लेंथ एंड ब्रेड्थ का सम 52 आ गया। दोनों में से एक को ऐड कर लिया x उस साइड जाके माइनस, तो ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज गिवन। हंसिका, एरिया Yes, ऑफ sir. रेक्टेंगल, Sir, L into b. एरिया ऑफ l into b, लेंथ into breadth, that is given 640। लेंथ की वैल्यू x, ब्रेड्थ की वैल्यू 52 माइनस x, किसके इक्वल? 640। मल्टीप्लाई करो, 52x माइनस x स्क्वायर 640। Yes, sir. सारी टर्म उस साइड, क्योंकि x स्क्वायर को नेगेटिव मत रखना, नहीं तो माइनस कॉमन लेके कट करना पड़ेगा। x स्क्वायर उस साइड जाके प्लस, 52x उस साइड जाके माइनस, और 640 प्लस का ही पड़ा था। Is equals to 0. अब 640 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो 52 आए। यस, 32 एंड 20, लास्ट में प्लस साइन है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या माइनस है तो दोनों नेगेटिव साइन के होंगे। 32x एंड 20x प्लस 640। फर्स्ट टू लास्ट टू, x इज कॉमन, x माइनस 32। नेक्स्ट टू में बच्चे -20 कॉमन, x माइनस 32, x माइनस 32 सेम वन टाइम, और साथ में x माइनस 20। either this or this, x minus 32 is 0, x minus 20 is 0। x की वैल्यू बचे 32 and x is 20। if length is 32 meter, then breadth 52 minus 32, that is 20 meter। अब x length, if length is 20 meter, then breadth 52 minus 20, that is 32। ऐसे दोनों आंसर लिखने बच्चे, 32 and 20, 20 and 32। these are the answers। आगे समझ? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इस सम में बच्चे? सर हाँ जी, सर आप बिना मतलब एलसीएम किए सर आप कैसे निकाल लिए फैक्टर्स? 20 years हो गए बच्चे पढ़ाते हुए। अंडरस्टूड? नहीं सर कोई मतलब इसका कोई ट्रिक होता क्या? कोई ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब खुशबू को नहीं आती थी मिडिल टर्म, बट अब सबसे पहले बोलती है वो, है ना खुशबू? Yes, sir. या चलो, जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चे उतना आए। कोई रेस है, हम कहेंगे हम फर्स्ट डे ही जाके मतलब फर्स्ट आ जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो प्रैक्टिस कर रहा है पूरे 1 साल से, उसको पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल है। रेस में पहले ही इतने आगे निकल जाओ कि मतलब कोई धक्का दे ही ना सके।
Seventh, a footpath of uniform width runs around the inside of a rectangular field. Inside एक rectangle बना लिया बेटा. Footpath, uniform width. Uniform मतलब चारों साइड से width सेम है. ये फुटपाथ है जहां पे मैंने लाइंस लगा दी. ओके. A footpath of uniform width runs around the inside a rectangular field 32 meter long, and 24 meter wide. This is 24 meter. If the path occupy 208 meter square, मीटर स्क्वायर में क्या निकलता है? एरिया. मतलब एरिया ऑफ फुटपाथ दिया है. पाथ का एरिया मतलब फुटपाथ का एरिया गिवन है 208. फाइंड द विड्थ ऑफ द फुटपाथ. यस गरिमा. लेट width of footpath be x meter. Then what we can do? sir Yes, बोलो. sir फुटपाथ के 24 बिना minus sir area of outer rectangle minus area of inner rectangle. सही है. इनर की लेंथ कितनी आएगी? sir 24 minus This is the breadth, this is the length. sir 32 minus 2x. Yes, x इस साइड से बच्चे, x इस साइड से. 32 minus 2x. सेम वे ब्रेडथ कितनी आ जाएगी इनर की? 24 minus 2x. minus 2x. आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करो. Yes. बच्चे विड्थ x है. इस साइड से भी x है. दोनों साइड से x विड्थ है ना. टोटल इज 32. x इस साइड से माइनस हो गया, x इस साइड से 2x माइनस हो गया. तो इनर यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी रह जाएगी? टोटल 32 है यहां से यहां तक. x इस साइड से, x इस साइड से, तो इनर लेंथ क्या रहेगी? 32 minus 2x. सेम वे टोटल ब्रेडथ इज 24. x इस साइड से माइनस होगी, x इस साइड से, तो इनर क्या रहेगी? 24 minus 2x. Understood? Yes, sir. Now outer rectangle का एरिया लेंथ इंटू ब्रेडथ 32 into 24 माइनस इनर का एरिया 32 minus 2x into 24 minus 2x. स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया बेटा. इज इक्वल टू कितना गिवन है एरिया हमें पाथ का? 208. 32 into 24 को बच्चे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे ही रख रहा हूं. क्यों रख रहा हूं तुम्हें पता चल जाएगा. 32 into 24 minus 32 to the 64x minus 2x into 24 minus 48x 48. minus minus plus 4x square. समझ आई? मैंने 32 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x को दोनों से किया. बट 32 into 24 मैंने वैसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वो कट हो जाएगा. अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 32 into 24 माइनस इंटू माइनस प्लस 64x माइनस माइनस प्लस 48x माइनस इंटू प्लस माइनस 4x इज 208. ये बच्चे कैंसिल हो गया. 32 into 24 प्लस का है, 32 into 24 माइनस का है. इन दोनों को बच्चे ऐड करो. 4 plus 8 12 1 5 6 11 माइनस 4x स्क्वायर इज 208. सारी टर्म्स एक साइड पे. 4x स्क्वायर उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 112 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा. 208 प्लस का ही है इज इक्वल टू 0 इस साइड चाहे उस साइड. अब 4 कॉमन आ रहा है, सिंप्लीफाई करना ही करना है हमने, जितना शॉर्ट हो सके करना है. 4 to the 8 32 8 plus 5 2 x square minus 28x plus 52 is equal to 0 upon 4. 4 मल्टीप्लाई था, उस साइड जाके अपॉन हो गया 0. 52 बन जा 52 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें 28 आए. So minus 26 and 2. 26x minus 2x. Yes. First two and last two. X is common.
x minus 26 minus 2 is common, x minus 26, x minus 26 and x minus 2. एक x की वैल्यू बच्चे हमारे पास 26 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी. 2 This is to be rejected, है ना? This is to be rejected, not 2, क्योंकि 26 दोनों साइड से, तो 52 तो सिर्फ यही हो गया टोटल, ये तो हो नहीं सकता, टोटल तो 32 है. That's why 26 is to be rejected. कितनी आ जाएगी width of path? 2 meter. That we have to find. हाँ जी बेटा. सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आगे जो आपने लिखा वो जरा समझाना. ये चीज, ये स्टेप बेटा. यस सर. बच्चे हमने पाथ का एरिया फाइंड करना है. बिगर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है. बिगर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ 32 है, ब्रेड्थ 24 है. 32 into 24 लिख दिया, माइनस इनर भी रेक्टेंगल है, लेंथ 32 minus 2x है और ब्रेड्थ 24 minus 2x है. उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद तो आगे सिंप्लीफाई किया है. अंडरस्टूड? ठीक है बच्चे. यस सर. ट्राई करना, नहीं निकलेगा तो कल पूछ लेना फिर से. जितना खुद ट्राई करोगे उतना बेटर है. 8. Thus, two squares have side x and x plus 4. दो स्क्वायर बना लो बेटा. एक की साइड x, दूसरे की साइड x plus 4. आई थिंक पेन, एक सेकेंड बेटा, 1 मिनट रुक दो. रिफल खत्म हो गया. x and x plus 4. The sum of their areas is 656. Express this as an algebraical equation in x and solve the equation to find the sides of the square. Simple enough. Yes, Jasmine. सर Jasmine, तेरा नाम जैस्मिन है? Sir, x square plus नहीं, नहीं, x plus 4 whole square is equals to 656 square centimeter. 656. You can solve now. हो जाएगा सॉल्व बच्चे? यस सर. Yes, sir. बच्चे पेन सही नहीं चल रहा. Now, question number 9. The dimensions of a rectangular field are 50 meter by 40 meter. First of all, make a rectangle. 50 meter by 40 meter. 50 meter by 40 meter. A flower bed is prepared inside this field, leaving a gravel path of uniform width all around of the flower bed. फ्लावर बेड बना दिया बच्चे बीच में, यूनिफॉर्म विड्थ सेम पहले की तरह, चारों साइड से यूनिफॉर्म विड्थ. द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड and graveling the path at ₹30 and 20 per square meter respectively is ₹52,000. 52,000. Find the width of the gravel path. Let width of gravel path be x meter. This is x, this is also x, this is all x, x. Inner की बच्चे लेंथ क्या आ जाएगी? 50 minus 2x. ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी? 40 minus 2x. According to question. Yes, Garima. यस सर. बताओ क्या लिखूं मैं? हमें फ्लावर बेड की कॉस्ट कितनी दी है? ₹30 पर स्क्वायर मीटर. एंड ग्रेवलिंग द पाथ की कॉस्ट क्या दी है? ₹20 पर मीटर स्क्वायर.
फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर बेड का एरिया 50 minus 2x into 40 minus 2x. This is the area of flower bed. Yes or no, Garima? Yes, sir. Into 50, because we have to find the cost. Plus, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो. Now gravel paths. How we can find the area of path? How we can find the area of path? Bigger rectangle minus smaller rectangle. Area of bigger minus area of smaller. 50 into 40 minus 50 minus 2x into 40 minus 2x. This is the area of gravel path into 20. सारे को 20 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए बाहर लिखा बच्चे मैंने 20. किसके इक्वल टोटल? 52,000. थोड़ी सी लेंथी है इक्वेशन, बट समझाना सर प्लीज बच्चे एक्सप्लेन once. फ्लावर बेड का कॉस्ट कितना दिया है? रुपी 50 है कि 30 है? 30 है, सॉरी, यहाँ 30 आएगा, नॉट 50, 30 रुपी 30 पर मीटर स्क्वायर है. हमने क्या किया? फ्लावर बेड का एरिया निकाला. जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, दैट इज द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. लेंथ ऑफ इनर एंड ब्रेड्थ ऑफ इनर दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. उसको किससे मल्टीप्लाई किया? जो रेट दिया था हमें, रुपी 30 पर मीटर स्क्वायर गिवन था. रिस्पेक्टली मतलब फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, प्लस ये तो आ गई फ्लावर बेड की कॉस्ट, प्लस ग्रेवल पाथ का एरिया निकालेंगे कैसे? आउटर माइनस इनर रेक्टेंगल. आउटर रेक्टेंगल 50 into 40 and inner rectangle 50 minus 2x into 40 minus 2x. Understood? This is the Yes sir. bigger rectangle, this is the smaller rectangle. उन दोनों को माइनस किया तो एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ आ गया. और रेट क्या दिया था इसका? 20 into 20 कर दिया. अभी बच्चे एक काम करना है, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो. वैसे एक चीज और भी कर सकते थे, वही करते हैं. चलो, तो मैं एक नई चीज सिखाता हूं. इनको ऐसे रखो, 50 minus 2x into 40 minus 2x into 30. इस ब्रैकेट को ओपन करो, प्लस 50 into 40 किससे मल्टीप्लाई होगा? बाहर क्या पड़ा है? 20 into 20 माइनस this into 20, 50 minus 2x into 40 minus 2x into 20 is equal to 52,000. Now, what is this and this? Same. ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट इसमें 30 से मल्टीप्लाई है, इसमें 20 से. इन दोनों में से 50 minus 2x into 40 minus 2x कॉमन ले लो. What is left? इस पूरी टर्म में से 30 बच गया, माइनस साइन था यहाँ पे, यहां से क्या बच गया? 20, प्लस ये टर्म साथ में आएगी. हमारी कैलकुलेशन आधी रह जाएगी, हम कॉमन लेके करेंगे. तो इसमें से और इसमें से जो डबल अंडरलाइन कर दिया हमने, क्या किया? कॉमन ले लिया. 50 minus 2x and 40 minus 2. सर जो यहाँ से 30 बच गया, यहाँ से. हाँ जी बच्चे, सर 20 50 से भी तो मल्टीप्लाई है.